Assalamualaikum class. So we are going to start a new topic, that is enzymes, your chapter number 6. The major concept of this chapters are characteristics of enzymes, mechanisms of enzyme, that is the action of enzyme, lock and key role method, that was very important topic, and the specificity of enzyme. So these are the topics which we are going to learn and understand the whole concept of these topics. Now I'll start the explanation. Come to page number 108. So our life is the name of activity. So in our body, different types of mechanism and functions are performed by our body in daily life, in our daily basis. You can say that at every each and every moment our body is performing different sort of functions, in which different thousands of chemical reactions are um, take place in our body. So these reactions are collectively called the metabolic reactions. So the mechanism or the phenomena of these metabolic reaction is called as metabolism. So there are two types of metabolic activities, either is constructive or destructive. So what is metabolic activity? The activity in which energy is producing or the energy is used. So in all types of the reaction, when the energy is involved in that type of reaction, that type of reaction is called as metabolic reaction, जिसके अंदर आपकी कोई energy use हो रही हो या प्रोड्यूस हो रही हो, तो उसको हम अपना मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं. एज आई टोल्ड यू, द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर ऑफ टू टाइप्स. दो तरह की होती हैं, आइदर इज कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव. या तो उसमें बन रही होंगी कंस्ट्रक्टिव, और डिस्ट्रक्टिव या तो उसमें टूट रही होंगी. तो ठीक है, तो इन कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन लार्ज मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर ऑफ सेल और बॉडी, and these reactions are called as anabolic reaction, and the metabolism is called as anabolism. वो रिएक्शन जिसके अंदर आपका मॉलिक्यूल बन रहा होगा उसको हम कहेंगे एनाबॉलिज्म, और उस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं. और अगर किसी ऐसा जो रिएक्शन हो रहा है जिसमें यही हमारा लार्ज मॉलिक्यूल टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, और इसमें एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिक रिएक्शन, एंड द एक्टिविटी इज कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म. तो आपने ये बात का ध्यान रखना है कि जो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रहे होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और मेटाबॉलिज्म, एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स. First is constructive and second is destructive. In constructive reaction, when the large molecules formed, that is called as anabolic reaction or anabolism, and when these large molecules break down and energy produce, this type of reaction is called as catabolic reaction or catabolism. ठीक है, ये तो पहले आपका मेजर मेन कॉन्सेप्ट है जिसमें आपने यही समझना है कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन क्या है और इनमें क्या हो रहा है, किस में एनर्जी बन रही है और किस में एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, किस में जो है वो क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल हमारा बन रहा है और किस में हमारा मॉलिक्यूल जो है वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है. So the chemical reaction requires particular condition to carry down at proper rate, especially temperature and pressure. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होता है तो दे नीड अ पार्ट टू मतलब उसको जो है ना एक पाथ चाहिए, उसको एक इन्वायरमेंट चाहिए प्रोसीड करने के लिए, जैसे कि उसको एक जो है वो टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक पीएसआई, हमारा जो प्रेशर होता है वो चाहिए होता है, तभी जाके कोई हमारा बॉडी का जो रिएक्शन है वो प्रोसीड होता है, वो जो है वो स्टार्ट होता है या होना स्टार्ट होता है. ठीक है, तो कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर and pressure inside cell
or organism are generally found not suitable for chemical reaction. For example, in our human body, the temperature remains 37 degree and pressure is about 120 per 80 mm of Hg. mm of Hg का मतलब है millimeter of mercury. So millimeter of mercury is the unit of pressure, and pressure measurement is the analysis and applied force by a fluid on the surface. ठीक है, तो pressure क्या होता है कि जो हमारा किसी भी फ्लूइड के जरिए आइदर इट इज लिक्विड और गैस, उसके जरिए जो फोर्स अप्लाइड हो रही होती है किसी भी सरफेस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट. तो जो हमारा जो बॉडी का जो इन्होंने यूनिट बताया है, जो इन्होंने टेम्परेचर बताया है, उसके बाद जो इन्होंने PSI बताया हुआ, दैट वाज 120 पर 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. ठीक है, इसकी फुल फॉर्म यही है. Therefore, condition of temperature and pressure are not enough to perform any chemical reaction. जिस तरह का हमारी human body का temperature और pressure है, that was not suitable to perform any sort of chemical reaction. So now question arises, how biochemical or metabolic reactions can occur without altering these conditions. जब तक कि इसको हम अलर्ट नहीं कर रहे, कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज जब हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म होती हैं तो दे नीड अ ट्रिगर, और यू कैन से दैट उनको अलर्ट करना पड़ता है टू परफॉर्म एनी फंक्शन, जिसके लिए हमारा एक टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो अपना एक बाकायदा रोल प्ले करता है. एज आई टोल्ड यू, द mechanism of pressure के pressure basically होता क्या है, that was the force exerted by a fluid on the surface, that was called the pressure. ठीक है ना. तो जब वो फोर्स ही इनफ नहीं है कि वो किसी भी रिएक्शन को ट्रिगर कर सके, तो फिर कोई भी तरह का एंजाइमेटिक या केमिकल जो रिएक्शन है वो हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म हो कैसे रहा है. नाउ बॉडी रिक्वायर्स सम facilitators. These facilitators helps to perform biochemical reaction at low energy. From above discussion, it's clear now that each reaction requires some amount of minimum energy to initiate a reaction. This minimum amount of energy is called activation energy, and this amount is high, the difficult will be the reaction or vice versa. For example, the activation energy needed to break a glucose molecule initially requires energy of 2 ATP molecules. अब इन्होंने ये क्या बताया है कि जाहिर है कि हमारी जो बॉडी है उसमें जो होते हैं क्या होते हैं, फैसिलिटेटर्स होते हैं. वो क्या करते हैं कि वो हमारी बॉडी में बहुत ही लो एनर्जी में जो है वो मदद करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को करवाने में. और यही बात हमारी ऊपर वाली बात को प्रूव कर रही है कि भाई हम जब कह रहे हैं कि ये टेम्परेचर और प्रेशर जो है इट्स नॉट इनफ टू ट्रिगर एनी केमिकल रिएक्शन, तो वहीं हम कह रहे हैं कि अवर बॉडी रिक्वायर्स सम फैसिलिटेटर्स. अब हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, कुछ फैसिलिटेटर्स जो है वो रिक्वायर होते हैं किसी भी तरह के केमिकल रिएक्शन को ट्रिगर करने के लिए. जैसे इन्होंने बताया कि अगर हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और उसको हमें जो है वो तोड़ना है, क्योंकि जाहिर है जब हम अपने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं तो हमें जो है वो एनर्जी जो है वो हमारी बनती है. तो उसमें क्या होता है कि उसके लिए भी हमें तकरीबन 2 ATP मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स. तो हमें अपने एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स जो है वो चाहिए होते हैं ताकि हम अपने ग्लूकोज की मॉलिक्यूल को ब्रेक कर सकें. और वो जो हमें एक थोड़ी सी एनर्जी जो चाहिए, तो 2 मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. तो जो ये लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए अपना केमिकल रिएक्शन को जो है वो परफॉर्म करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी एंड इट इज़ इन वेरी मिनिमम अमाउंट. अब हमारे जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो इसमें हमारी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हमारी इसमें जो है वो बनती है. हमें क्या चाहिए कि एक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो बनने के लिए हमें मज़ीद एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी के मॉलिक्यूल्स चाहिए ताकि हम अपने बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन को करवा सकें. अब जैसे कि हमारे
जो सेल का कौन सा पार्ट है जो एनर्जी जो है वो रिलीज करवाता है, दैट वाज माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ सेल। अब उस माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमें एनर्जी जो है वो रिलीज करवा रहा है, हमारी बॉडी को दे रहा है, तो उसके लिए भी क्या चाहिए, उसको पहले 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स चाहिए मजीद एनर्जी को बनाने के लिए। ठीक है, अंडरस्टूड कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फंक्शन हो रहा है, आइदर कि वो एनर्जी ही रिलीज करवा रहा है, उसको भी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए एनर्जी को बनाने के लिए। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा जी स्टूडेंट्स, द हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाय ऑर्गेनिज्म। कभी भी हमारी किसी भी बॉडी के ज़रिए जो है हम कोई भी केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेट कराने के लिए एक बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट नहीं देंगे। ठीक है, हम हमेशा क्या करेंगे, हम जो है फैसिलिटेटर्स जो हैं उनके ज़रिए एक्टिवेशन जो है वो करवाएंगे एनर्जी की। ठीक है, अब एंड दीज फैसिलिटेटर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये फैसिलिटेटर्स किससे बने हुए होंगे, प्रोटीन। एंड these फैसिलिटेटर्स आर कॉल्ड एज एंजाइम्स। अब यहाँ बात आ गई है हमारे एंजाइम्स की कि ये जो एक्टिवेशन करवा रहे हैं ये कौन करवा रहे हैं, ये हमारे एंजाइम्स करवा रहे हैं। एंजाइम्स की इन्होंने आपको वो दी हुई है कि किस तरह से ये वर्ड निकला, इनसे EN से इनसाइड, एंजाइम से यीस्ट। अच्छा, अब इसका नाम जो है वो एंजाइम यीस्ट के नाम से क्यों पड़ा, वो इसलिए पड़ा कि एक जो है वो इन्होंने फ्रूट सेप तैयार किया था। सेप बेसिकली एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर मिनरल्स होते हैं। ठीक है, और मिनरल सॉल्ट के कंटेंट होता है, और ये आपका एक जिस तरह से आप कह लेना कि आप जूस वगैरह निकालते हैं, आप एक फ्रूट का एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं, इस तरह से आप सैप भी प्रिपेयर करते हैं। इसमें आप क्या करा कि इसमें इन्होंने देखा कि यीस्ट ने फर्मेंटेशन कॉज करी बाय बायोकैटलिस्ट एंजाइम को यूज़ करते हुए। बायोकैटलिस्ट कौन सा एंजाइम होता है, एक ऐसा एंजाइम होता है जो क्या करता है कि आपकी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को जो है वो स्पीड अप कर देता है, कि जो भी आपकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है उसको ये स्पीड अप कर देता है। जितने भी तरह के ऑर्गेनिक जो हैं वो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको ये स्पीड अप करता है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो यीस्ट था वो फ्रूट सैप के अंदर जो है वो जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा था उसमें बायोकैटलिस्ट एंजाइम यूज़ करके वो जो है वो कन्वर्ट कर रहा था एनर्जी को, और क्या कर रहा था, एनएरोबिकली जो है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके अल्कोहल एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस कर रहा था। इसमें एनएरोबिकली का मीनिंग्स ये होते हैं, फर्मेंटेशन में क्या होता है कि विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन जो है हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, जिसके नतीजे में अल्कोहल भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि एक एंजाइम है जिसको हम बायोकैटलिस्ट एंजाइम कह रहे हैं, और ये एंजाइम क्या कर रहा है, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी में ये केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करवा रहा है, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारा जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो रहा है और हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, साथ साथ हमारे अल्कोहल भी प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि इसमें जो है वो यीस्ट इन्वॉल्व है। अब जो यीस्ट है वो क्या है, ये बेसिकली हमारे किंगडम फंजाई से बिलोंग करती है। ये हमारा फंजाई है, ऑर्गेनिज्म है, और इसका रियल नेम क्या है, सैक्रोमाइसिस सर्विसाई है। ठीक है, तो ये एक एडिशनल नॉलेज है, फिलहाल इसको आपने कोई याद नहीं करना, मेमोराइज नहीं करना लेकिन आप लोग की एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट जो है वो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।